Okay, student, am I audible? Yes, sir. Yes, good evening all. Yes, please turn on your camera and rename yourself. Sir, this is Kundan Gupta. Okay, good. Kundan Gupta, so you joined, I think today only you joined, no? Is it your Yes, first? sir. Okay, right. Yes, sir. This is my first class. Okay, good, good. And who is this 5BB RGN? Please turn on your camera and 5BB RGN, who are you? Keep your camera on so it will be nice to interact. Okay, so 2 plus 1, 3, 4 students are here. Okay, so we start. Are you ready? Yes, sir. Yeah, okay. So in last class, we discussed that we just started, you can say, about the thermosetting and thermoplastic. Am I right? So, Yes. yes, please mute yourself. Okay, please. So, just a minute, let me say whiteboard. Yes. So, my question was that why thermosetting and thermoplast are different to each other. Okay. In last class, I gave this assignment to you to find out the property. Means why? Means we are heating the thermoplastic again and again, but it is not. Its molecular structure is not getting changed. So what is the reason? उसका वो वैसा का वैसा क्यों रहता है? क्या क्या रीजन है उसका? So I think somebody texted in the group also. तो कोई बता सकता है आप में से? Why it is so? Okay, I will explain. Don't worry. But you need to find out. You just try yourself. Okay. These all things are available in Google. But why I am forcing to find out that if you do, then these things will be remembered whole time. Okay. That is the main reason. Okay, then we should move both over PPT only. Okay, so just a minute. Okay. So my slides are visible. Thermosetting and thermoplast. Yes, sir. Yes, yes. Okay. Okay. So means my question is same again.
see student, what is my expectation is you need to revise your last class before joining the class. You need to revise all the concept. Otherwise, I will teach all the things and it will not make any fruit. Okay. So it means if I'm here, then I expect from your side that you also should be interested in the subject. Okay, you have to show some interest. So in last class we discussed about the thermosetting and thermoplast. So student can you can turn on your camera, no? Means if, is there any problem? Yes, other Ganesh Selander. Yes, your camera. If your camera will be on, actually I am not your course teacher. Okay, it is only interaction session so that we can means transfer our knowledge each other. Okay, it is only discussion. I am not your teacher and I am not your. I will not take your exam like that. Okay. It is only for means suppose you are asking something with your friend, okay, because you don't know about that, so it is like that. Okay, okay, मतलब कि एक इंटरेक्शन है इसमें, आपको न तो कोई ऐसा मतलब हेजिटेट होना है या कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं आप, है ना? ऐसा कभी फेमिलियर रहेंगे तभी इसका जो मोटिव मेरा है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्ट जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि थर्मोप्लास्ट होता है उसको अपन हीट कर सकते हैं, हीट करेंगे तो ये अगेन लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसको वापस कास्ट कर सकते हैं, तो इस टाइप से रहता है। थर्मोसेटिंग में एक बार उसको प्रॉपर शेप दे दिया तो हम उसको वापस मतलब रिगेन नहीं कर सकते, मतलब वापस ये साइकिल इट इज नॉन साइक्लेबल। तो व्हाई इट इज सो, दिस इज माय क्वेश्चन कि ऐसा इन दोनों में ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या डिफरेंस है जो एक तो रिसाइकिल हो पा रहा है, दूसरा नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आपने देखा, किसी ने गूगल पे देखा कुछ, मतलब नॉलेज शेयर करना चाहते हैं आप, या फिर आपको एक्सपीरियंस हो उसके हिसाब से? यस उषा, उषा आदित्य, उषा, Yes, sir. yeah, so did you check my question? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. थर्मोसेटिंग, हाँ तो बताइए थोड़ा थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्ट में क्या डिफरेंस मिला आपको? देखो एक सिंपल सी चीज है, चलो मैं समझाता हूँ आपको। आपका पॉलीमर मतलब क्या हुआ? लॉन्ग चेन। जब भी कोई पॉलीमर बोलता है, एक चेन दिमाग में आती है, इस टाइप से चेन, है ना? तो ये चेन है, एक चेन ये है, इस टाइप से बहुत सी चेन लाइक। तो मैं जब इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा? जब मैं गर्म करूंगा तो क्या होगा, मतलब दिस चेन विल ट्राई टू मूव अवे, मतलब एक दूसरे से दूर होना जाएगी ना। गर्मी में क्या होता है, गर्मी किसी भी चीज में अगर हीट देंगे तो वो चेन अलग अलग होगी, है ना? तो ये चेन अलग होगी, ये चेन इधर से इधर भी जा सकती है ना, स्लाइड कर सकती है। तो लेकिन इसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है। अगर टेम्परेचर अगर वापस डाउन किएंगे, इफ वी आर अगेन पुट डाउन अवर टेम्परेचर इन द लोअर ट्रेंड, तो वो चेन अगेन वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो पहले ये फैला फिर वापस सिकुड़ा, तो कुछ फर्क हुआ क्या? चेन तो वही है, समझिए ना? मतलब इसमें कुछ फर्क चेंज मतलब फर्क नहीं हुआ, मतलब कि देखिए इनिशियली जो चेन थी वो पास पास थी, आपने टेम्परेचर दिया तो वो दूर दूर हो गई, ठीक है? उसको वापस कूल करोगे तो वो वापस पास पास आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब ओवरऑल चेन तो वही है ना, कोई चेंज नहीं हुआ ना। ठीक है, अच्छा ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये चेन ऐसी नहीं है, इसमें कुछ मैं चेंज करता हूँ। सपोज ये चेन कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, ये चेन कनेक्टेड है लाइक दैट, कुछ बॉन्डिंग है इनमें, तो ये चेन इस टाइप से कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा? क्या सोचते हो आप, क्या होना चाहिए? ये चेन जो है वो फैलने की कोशिश तो करेगी, करेगी ना? लेकिन इसके सपोज ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड, एक मिनट दूसरा कलर कंटिन्यू, सपोज ये बॉन्ड टूट गया गर्म करने से, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो क्या होगा? वापस जब ये पास में आएगी तो
ये बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब चांस कम है ना। तो मतलब कुछ चेंज हुआ है, मतलब कुछ केमिकल चेंज हुआ है, समझे ना। मतलब फर्स्ट वाले पॉलीमर में कोई चेंज नहीं हुआ था। जब चेन स्ट्रेट, मतलब चेन एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही थी, तब कोई मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से वापस कम करने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर में, जहाँ की चेन आपस में कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉस लिंकिंग। मतलब क्रॉस चेन लिंकिंग, यस। एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड है, मतलब कुछ कुछ लिंक है। तो अगर आप गरम गरम करोगे तो ये लिंक टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो वो यस। चेंज हो जाएगा पूरा, इसलिए तो ये डिफरेंट होता है आपके थर्मोप्लास्टिक में और थर्मोसेटिंग में, ठीक है। समझ में आया? थर्मोप्लास्टिक में चेन यस। एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेगी, वो एक दूसरे से दूर रहेगी, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो आपस में और दूर हो जाएगी, ठीक है। बट थर्मोसेटिंग में ऑलरेडी ये चेन आपस में कनेक्टेड रहती है, तो ये एक से दूर नहीं हो जाएगी, और दूर होगी तो ये इसमें बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, सबको समझ में आया? किसी को नहीं आया तो मुझे बताइए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अरे आपको? आ गया सर। यस सर। गुड। हाँ, तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्ट में। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकली देखते हैं क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक, जस्ट a minute. Thermoplastic have low melting point and when heated will soften to malleable state, ठीक है। soften to malleable, malleable means what is, हाँ, what is the meaning of malleable? कि किसी चीज की प्रॉपर्टी उसको सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीट में जैसे जैसे कि आपका आटा है, घर में आटा होता है ना, आटा, आटे आटे को अगर अपन प्रेस करेंगे तो वो सीट बन सकती है ना उसकी, मतलब रोटी बनती है, रोटी एक तरह से सीट ही है, ठीक है ना। तो पॉलीमर उस वे में अपन समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये when heated, just a minute, when heated will soften to malleable state और melt to liquid। पहले वो malleable state में जाएगा, उसको आप फर्दर हीट करोगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस मीन्स दैट दे कैन बी शेप्ड इनटू नियरली एनी मोल्ड और डिजाइन। ओके, मतलब लिक्विड बन गया, मतलब पानी पानी जैसा हो गया, तो पानी तो किसी भी शेप में शेप ले सकता है ना। तो इट कैन टेक एनी मोल्ड और डिजाइन। Also, even extreme heat does not change the makeup of material। ये जो मैंने अभी समझाया, ठीक है ना। आप उसको हीट देंगे, लेकिन जो उसका मेकअप है, जो उसकी बनावट है, वो चेंज नहीं होगी। So, even after a material is shaped and cured, it can be heated and melted or reshaped again, ठीक है। क्योंकि उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको बार बार गर्म कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। गर्म करोगे तो चेन दूर हो जाएगी, पास पास पर करोगे तो चेन वापस पास आ जाएगी, बस वही चलता रहेगा, लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा। एंड इट विल बी द सेम थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो चेन मतलब कि इसका सिंपल थर्मोप्लास्टिक समझने के लिए ये है कि चेन है इस टाइप से, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, और जब आप इसको गर्म करोगे तो ये चेन एक दूसरे में दूरी बनेगी, और ये एक दूसरे के ऊपर स्विम भी कर सकती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर तैर सकती है, ठीक है। क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये एक दूसरे के ऊपर तैर सकती है, ठीक है। तो इसलिए समझ में आ गया ये थर्मोप्लास्ट, सर एक थर्मोप्लास्टिक समझ में सर आया एक आपको? क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलिए। सर जो ये थर्मोप्लास्टिक जो रहता है, अगर फर्स्ट टाइम अगर इसको हम हीट करते हैं और हम्म एक बार इसका जो है प्रॉपर्टीज और सारे शेप चेंज हो गए हैं, हम्म। वापस मैं इसको दोबारा रीहीटिंग करता हूँ, तो क्या हाँ सेम प्रॉपर्टीज रहेगा पहले की तरह ओरिजिनल, जैसे वर्जिन कंपाउंड्स रहते हैं, वर्जिन? हाँ, देखो इसमें अगर टेक्निकली, मतलब अगर आप इनिशियली लेवल में पूछोगे तो मेरा आंसर ये रहेगा कि हाँ सेम रहेंगे, ठीक है। पर ये ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी टाइम आप वो प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि गर्म करने से, ठंडा करने से, वैसे जहां तक मैं इसमें बता रहा हूँ ना, कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन कुछ चेंज आता है। मतलब आपका प्लास्टिक अगर धूप पे पड़ा रहेगा तो वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। ये चीज तो अपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं ना, हम्म। प्लास्टिक। यस। तो उसमें क्या होता है, जैसे ये चेन है, तो बार बार गर्म करने से हो सकता है कि ये टूट जाए यहाँ से, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज कितनी लंबी थोड़ी हो सकती है, मतलब वो कुछ टाइम बाद तो टूटेगी ना, हर चीज की एक लाइफ होती है। तो वो अलग 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 पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि बस अपने पास नया प्लास्टिक है, वर्जिन प्लास्टिक है,
और उसको हम गर्म कर रहे हैं ठंडा कर रहे हैं तो क्या फर्क आ रहा है, ठीक है ना। मैं लॉन्ग टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज लॉन्ग टाइम में तो हर चीज डिग्रेड होती है ना, तो उसको मैं अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज आपका जो थर्मोप्लास्टिक है वो रिसाइकेबल, मतलब उसको मोल्ड बना सकते हैं, वापस मेल्ट कर सकते हैं, वापस मोल्ड बना सकते हैं। सो दिस थिंग्स, दिस साइकिल विल बी कंटिन्यू। ठीक है, समझ में आया? कोई क्वेश्चन और यस सर। डाउट? नहीं, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा कि आप लोग थोड़ा समझ रहे हो कुछ चीज। अगर आप समझोगे नहीं तो मतलब मेरे लिए बड़ा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि मतलब कंटिन्यू मतलब बोलते रहना मतलब कोई मजा नहीं आता है, समझे ना आप। मतलब थोड़ा आपका सही। इंटरेक्शन चाहिए जी मुझे, सर। है ना। ये Yes. चाहिए मुझे। हाँ, एटलीस्ट मुझे ये रहना चाहिए कि आप सुन रहे हो, पता चला कि आपका आपका ये कैमरा भी बंद है और बस चालू करके चले गए, सर ने बोला है कि क्लास लेनी है, तो इस टाइप से जी थोड़ा सर, अ, इंटरेस्ट है सर, इसलिए मैं ज्वाइन किया हूँ। हाँ और हाँ। टाइमिंग मैच नहीं कर रहा था मेरा, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था। अच्छा अच्छा, टाइमिंग आप बता दीजिएगा, जो भी रहेगा वो मैं, टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, कुछ अच्छे से समझा सकूं, फिर मैं और आप कुछ डाउट पूछोगे तो मैं और पढ़ूंगा, मैं और पढ़ के आपके लिए मेथड तैयार करूंगा अच्छे से। अदरवाइज ठीक है, ये सब इंटरेस्ट रहता है कि अभी आज थर्ड क्लास है और ये इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास जी है, सर। यह इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास से जी सर। फिर मैं आपको मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से पॉइंट क्लियर करते रहूंगा, है ना। तो सिलेबस मुझे दे दिया जी है डॉक्टर विक्रम ने, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। Yes, sir. हाँ, ये अभी फर्स्ट इंट्रोडक्शन जरूरी है, अदरवाइज आपको वो चीजें है ना, आप एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लोगे ना तो वो चीज आप इससे रिलेटेड करोगे, इससे रिलेट करोगे तो आपको वो चीजें समझ में आएगी, मतलब आपके फ्लैशबैक में चलता रहेगा कि क्या हो रहा था। ये ओवरऑल है ना, मतलब आउटर व्यू ये सारा मैं एक बार दिखा रहा हूँ, उसके बाद अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक, थर्मोसेटिंग हो गया, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये पॉलीथीन नाइलॉन इसके एग्जाम्पल है, ये देख रहे हैं ना आप चेन, देखिए अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये चेन आफ्टर में आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये चेन एक दूसरे में उलझी हुई है, ठीक है ना। ये ये चेन एक दूसरे में उलझी हुई है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, समझे आप। उलझना और कनेक्ट होना अलग अलग बात है ना। आपके दो मतलब आपके सब सब सिर के बाल हैं तो वो उलझ जाते हैं, तो उलझना अलग बात है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है उनमें, अगर आप उसको वापस उलझा भी सकते हैं ना, तो इस टाइप से। तो ये चेन ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये चेन आपस में उलझी हुई हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं, क्लियर, ठीक है। तो ये यस। प्रॉपर्टी है आपका थर्मोप्लास्टिक का। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन थर्मोसेटिंग। तो व्हाट इज थर्मोसेटिंग? थर्मोसेट मतलब वही है कि एक बार वो उसको जो सेट कर दिया वो वैसे ही रहेगा। तो सिंपलेस्ट एग्जांपल है, आपके सबके पास होगा स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। ये थर्मोसेट से बना होता है, ठीक है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अभी मैंने जस्ट बात की स्विच की, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो यही तो अपने को जरूरत है, क्योंकि अगर स्विच का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो तुरंत वो मेल्ट हो जाएगा, पानी में मतलब लिक्विड हो जाएगा, वो आपको मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जहां भी हमको हाई टेम्परेचर चाहिए वहां हम थर्मोसेट यूज कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई भी पूछ सकता है इंटरव्यू में कि थर्मोसेट और थर्मोप्लास्ट कहाँ कहाँ यूज करोगे, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ दिस प्लास्टिक्स। So you have to answer in this proper format, okay. But once they are exposed to certain temperature and cured means मतलब उसको पकाना बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्योर्ड मीन्स उसको पकाना, जैसे कि वो होता है ना, जैसे कि आपने किया क्या कहते हैं उसको, क्योर रखना। प्लास्टर प्लास्टर किया प्लास्टर, तो उस पर अपन पानी डालते हैं, तो पानी क्यों डालते हैं? उसको क्योर्ड करने के लिए, उसको पकाने के लिए, इस टाइप से, है ना। So certain temperature and cured to a solid state, their component and physical property become set, means उसकी physical property और उसका जो component है वो set हो जाते हैं, ठीक है। सेट मतलब फिर वो चेंज नहीं होंगे, दे कांट मेल्टेड वे, उसको वापस से हम मेल्ट नहीं कर सकते हैं, और रिस्टोर टू देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। इंस्टेड द मटेरियल विल सिंपली बर्न और चार, ओके। सो व्हाट इज चार? चार मीन्स शक्कर है ना, आपका शक्कर घर में, शक्कर को आप किसी प्लेट में रख के गर्म करके क्या होगा कि वो मतलब पिघल पिघल हाँ, जाएगी। पिघलेगी। कुछ और गर्म करोगे तो वो काला काला एकदम ऐसा बन जाएगा, काला काला कुछ पदार्थ बन जाएगा उसका, ठीक है ना।
तो मतलब उसको, हाँ, तो उसको बोलते चेयरिंग। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि मतलब आपका मतलब पूरा नहीं बढ़ना, पूरा नहीं जलना। ठीक है, एक तरह से अगर अपन बोले तो पूरा नहीं जल रहा है कोई चीज, आधा ही जल रहा है। ठीक है, तो उस टाइप को उसको चार्जिंग बोलते हैं। तो इंस्टेड द मटेरियल विल सिंपली बर्न और चार्ज। ठीक है, तो अगर आप प्लास्टिक को इस जो थर्मोसेट है उसको गर्म करोगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा, बट वो जल सकता है या चेयरिंग हो सकती है उसमें। ठीक है ना, समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, लेकिन अब ऐसा Yes, क्यों, sir. हाँ ठीक है, तो अभी ऐसा क्यों होता है इसको अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके एग्जांपल लिख लीजिए आप, इपोक्सी एंड पॉलीयुरेथेन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक चेन अपन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाली चेन लेता हूँ मैं, इसको, ये वाली चेन। ठीक है, सपोज ये इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ ये चेन नंबर 1। ठीक है, तो ये चेन नंबर 1 आप देखोगे तो ये यहाँ से कनेक्ट, किसी और चेन से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से किसी और चेन से कनेक्टेड है, यहाँ भी किसी और चेन से कनेक्टेड है, और यहाँ भी किसी और चेन से कनेक्टेड। मतलब ये एक चेन है, वो दूसरी 4 चेनों से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, क्रॉस लिंक मतलब, और सिंपल लैंग्वेज में समझना है ना तो आप ऐसे समझिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी समझने की जरूरत नहीं। जैसे 3 चेन है, ये आपस में कनेक्टेड है, लाइक ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये वापस इससे कनेक्ट है। ठीक है, तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को बोलेंगे क्रॉस लिंक। ठीक है, 2 चेन आपस में बॉन्ड बना रही है, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं क्रॉस लिंक। मतलब अब ये चेन फ्री नहीं है। हाँ, क्रॉस लिंक बहुत टेक्निकल वर्ड है। व्हाट इज द क्रॉस लिंकिंग इन पॉलीमर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्रॉस लिंक होने के बाद ये चेन फ्री नहीं है। मतलब अब ये चेन क्या आराम से मूव कर सकती है क्या, कहीं भी नहीं कर सकती है ना, क्योंकि ये 2 बॉन्ड से बॉन्डेड है ऑलरेडी। ये जहां तक यहाँ दिख रहा है, मतलब वहां तो मिलियंस ऑफ बॉन्ड्स मतलब प्रेजेंट होते हैं, मतलब मिलियंस और ट्रिलियंस बॉन्ड्स आर देयर, बट यहाँ पर 1-2 बॉन्ड लेके समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है ना, तो इसलिए ये चेन अब आपस में मूव हो नहीं सकती है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है। सेट हो चुकी है मतलब अब इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा, आपने एक बार बना दिया है, अब यही रहेगा। ठीक है, चलो, तो अब ये चीज है कि सर ये हुआ कैसे। अब ये क्वेश्चन बनता है ना कि ये हुआ कैसे, ये जो बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब इस बॉन्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि ये बॉन्ड क्यों बन रहा है। ठीक है, तो ये बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि अपन इस पॉलीमर को गर्म कर रहे हैं। जब हम इस पॉलीमर को गर्म करेंगे तो 2 चेन आपस में बॉन्ड बना देगी। ठीक है, तो ये होगा आपका थर्मोसेट में। ठीक है, बट अगर आप थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं जो अपन ने प्रीवियसली डिस्कस किया था, उसमें वो चेन रिएक्शन नहीं करेगी, लेकिन यहाँ चेन रिएक्शन कर जाएगी। समझ गए, वहां चेन रिएक्शन नहीं कर रही है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बार बार रिसाइकिल हो सकता है। पर यहाँ गर्म करने से चेन आपस में रिएक्शन कर जा रही है, आपस में बॉन्ड बना जा रही है, तो वो वापस रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। क्लियर, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक क्या डिफरेंस है? यस सर। हाँ, अभी मुझे एक जना को एक्सप्लेन करेगा थोड़ा सा, जितना समझ में आया है। कोई एक बंदा हल्का सा एक्सप्लेन करेगा क्या कि क्या समझ में आया आपको? सर थर्मोप्लास्टिक अपना प्रॉपर्टीज और जो शेप होता है रीगेन कर सकता है, हाँ, बिकॉज उसमें क्रॉस लिंकिंग चेन नहीं होता, वेरी गुड। और वो वापस जो है। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद फिक्स हो जाता है, और हाँ वो जो है वापस में तो रीगेन नहीं कर सकता है अपने शेप हाँ, को। यस या तो यस, टूट जाएगा या तो वहीं का वहीं रहेगा। वेरी गुड, लेकिन वेरी थर्मोप्लास्टिक बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। गुड गुड। हाँ, बस यही मैं सुनना चाह रहा था, मतलब आपको समझ में आ गया है ना, बस यही चीज है। मतलब अगर अगर एक 1 वर्ड में अगर आंसर है तो ये कह सकते हैं कि क्रॉस लिंक, थर्मोसेट में क्रॉस लिंक है बस, हाँ। इसलिए सब कुछ लफड़ा हो रहा है। क्रॉस लिंक बन गया, इसलिए अब वो थर्मोसेट। वापस, हाँ, क्रॉस लिंक बनने से ये थर्मो सेट हो गया और इसकी प्रॉपर्टी सेट हो गई। बट अपना जो थर्मोप्लास्टिक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें क्रॉस लिंक हुआ ही नहीं, तो चेन वैसी की वैसी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक। इसके एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं, इपोक्सी, पॉली पॉलीयूरेथीन। ठीक, देन स्टेप 4, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स। ओके, तो ये तो हम सबको पता है कि क्या होता है, इनिशिएशन,
प्रोपोगेशन, टर्मिनेटेड। टर्मिनेशन एंड प्रोडक्ट। ओके, किसी भी पॉलीमर की ये रिएक्शन, ये किसी भी पॉलीमर को सिंथेसिस करने के लिए ये 4 स्टेप बहुत ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, इनिशिएशन, सब चलो मैं आपको एग्जांपल देता रहता हूँ, है ना, साथ में। इनिशिएशन मीन्स स्टार्टिंग। ओके, तो मेरे को स्टार्ट करना है चेन का। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? सपोज ये आपका, चलो ठीक है, ये सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, CH3OH। ठीक है, तो फर्स्ट मतलब रिएक्शन इनिशिएट हो रही है, तो इनिशिएट मतलब स्टार्टिंग हो रही है। तो ये सपोज किसी एक ऐसे ग्रुप से रिएक्शन करना जा रही है जो इस टाइप से है, COH। ठीक है, तो ये इसको लिख दिया CH2 और OH। ये जो रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, तो इनिशिएट हो रही है सपोज रिएक्शन, तो क्या होगा फर्स्ट स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में, थोड़ा बहुत बताइए क्या होना चाहिए, कुछ आइडिया? सर जल बाहर निकल जाएगा। वाह, वेरी गुड, जल बाहर निकल जाएगा, वेरी गुड। ये आपका H2O। यस सर। ठीक है, तो ये बाहर निकल गया और आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना वो CH3O। ठीक है, ये तो इस मॉलिक्यूल से आ गया, रिमेनिंग सेकेंड मोनोमर का लिख लेते हैं, तो ये CH2OH। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मतलब कि आपका कुछ बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इनिशिएशन, इसी तो फर्स्ट स्टेप। ठीक है, देन प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज का फैलना। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन, सॉरी, अब ये जो प्रोडक्ट बना, ये वाला प्रोडक्ट जो कि फर्स्ट, कलर चेंज कर लेते हैं, सपोज ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अपना फर्स्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब ये प्रोपोगेट करेगा। प्रोपोगेट कैसे करेगा? मतलब ये हो सकता है इस वाले मॉलिक्यूल से रिएक्शन करे वापस। ठीक है, तो इस वाले मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर सकता है, तो ये H यहाँ से चला जाएगा, OH यहाँ चला जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये प्लस, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, मैं इसको यहाँ ऐसे एरो कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए, है ना, ये वाला प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट और फर्स्ट रिएक्शन का रिएक्टेंट, फर्स्ट रिएक्टेंट, अगर ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो अगेन देखो प्रोडक्ट बनेगा CH3O, देन CH2, और फिर ये यहाँ पे O रहेगा ओनली, और H2O निकल जाएगा, तो ये रहेगा आपका OCH3। ठीक है, तो ये जो ये इसको बोल सकते हैं कि ये आपका दूसरा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट में क्या चेंज है? इसमें अगर आप देखोगे तो 2 ही कार्बन है, 1 और 2, है ना। इसमें कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। हाँ, तो मतलब कि कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है जैसे रिएक्शन बढ़ती जा रही है ना, वैसे ही यस। हाँ, वैसे ही जैसे अगर इसके मतलब और भी अगर इसके फंक्शनल ग्रुप होंगे तो ये रिएक्शन करता जाएगा आगे। ठीक है, तो मतलब ये आपका चेन बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर सपोज फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे एक ही लगाया, सपोज यहाँ पे OH और होता, ठीक है, तो चेन इस साइड से भी प्रोपेगेट हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी चेन बढ़ती जाएगी, तो ये प्रोपेगेशन होगा। फाइनल टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन मतलब क्या होता है कि आपकी रिएक्शन रुक गई है, अब रिएक्शन नहीं हो पाएगी। रुक कैसे गई? जैसे कि जो एग्जांपल मैंने लिया, इन दिस एग्जांपल यू कैन सी, ये जो प्रोडक्ट है ये अब रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि इसके देखो फंक्शनल ग्रुप कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, इधर भी हाइड्रोजन है इधर भी हाइड्रोजन है, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये वाला प्रोडक्ट अब रिएक्शन नहीं करेगा आगे, एक तरह से इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई टर्मिनेशन रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कब कर रहा था? जब उसके फंक्शनल ग्रुप एक्टिव थे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये वाले, इसमें OH है, इसमें COH है, ये वाला, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। जब ये सारे फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन कर जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो फाइनली आपका स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो ये हो गया आपका टर्मिनेशन। ओके, और टर्मिनेशन में जो बचता है वो आपका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब जो फाइनली जो आपको बना है। तो आपने इस रिएक्शन में सपोज ये प्रोडक्ट है, मतलब मैंने एकदम सिंपल सा स्टेप लिया है। ये काफी बड़ी होती है, जो अपन डिटेल में स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर वेट और वो फाइंड आउट करने के लिए, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 3 स्टेप है ये आपको समझ में आना चाहिए। इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। प्रोपगेशन मीन्स वो रिएक्शन प्रोपगेट हो रही है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, बार बार प्रोडक्ट बन रहे हैं, छोटी चेन बड़ी चेन के साथ कनेक्ट हो रही है, बड़ी चेन के साथ कनेक्ट हो रही है। तो इस टाइप से मतलब बहुत सी प्रोबेबिलिटी है, मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड कैन बी फाउंड। ओके, सो फाइनली अब हमको बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे इस रिएक्शन। ठीक है, और फाइनली मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएंगे और फिर वो रिएक्शन आगे नहीं होगी, उस स्टेज को अपन टर्मिनेशन रिएक्शन। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि जरूरी नहीं कि फंक्शनल ग्रुप ही खत्म हो। कभी कभी ऐसा भी होता है आपकी चेन इतनी लंबी हो गई है कि देखो रिएक्शन करने के लिए क्या होगा। सपोज ये चेन है, ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट है, और एक चेन ये है, इसका एंड पॉइंट ये है। ठीक है, तो जब इनका सपोज ये दोनों चेन आपस में रिएक्शन करने चाह रही है, तो इसका ये एंड पॉइंट इसके इस एंड पॉइंट के पास में आना चाहिए, तभी रिएक्शन हो पाएगी। ये दोनों जब पास में आएंगे तभी रिएक्शन होगी ना। बट ये चेन बहुत लंबी है। अगर अगर आपकी मतलब आपको पॉलीमर मतलब पॉलीमराइजेशन करना आपने काफी टाइम हो गया, स्टार्ट हो गया है काफी, ओके, रिएक्शन को काफी टाइम हो गया है, तो चेन काफी लंबी बन चुकी है। तो अब इस चेन को ओरिएंट होने में भी काफी मतलब मेहनत लगेगी। it will not easily oriented. Okay, it will take a lot of time and a lot of efforts to orientate and to make proper bond with another chain. Okay, तो ये चेन अब इस चेन के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन होने में भी टाइम लगेगा, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसको मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये सही ढंग से एक दूसरे के आमने सामने आए। ठीक है, तब भी रिएक्शन आपकी बहुत स्लो हो जाएगी। तो और सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पॉलीमर का मोलिकुलर वेट बहुत बढ़ चुका है तो भी आपका रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है ना, बट ये इसको हम पूरा टर्मिनेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि बंद तो नहीं हो रहा है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी तो है, बट बहुत स्लो हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती है, बट ये 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए आपका, और इससे फाइनली आपका प्रोडक्ट। ठीक है, सर जो टर्मिनेशन जो हमारा स्टेज रहता है, हाँ इसमें हमें कैसे पता चलता है कि अब ये हमारा जो स्टेज है रिएक्शन के टर्मिनेशन स्टेज में आ चुका है? बहुत अच्छे, कैसे हाँ आइडेंटिफाई करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि कैसे पता चलेगा कि आपका टर्मिनेशन हो चुका है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, मतलब कि अच्छा आप एक बार मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक बार मतलब ये क्लास अगर खत्म हो जाए तो आप वापस ज्वाइन कर लेना, ये नहीं है ना, वापस स्टार्ट करना। जी मतलब सर। आपके हिसाब से, चलो आपको, मुझे भी केमिस्ट्री नहीं पता, आपको भी केमिस्ट्री, अगर हम दोनों नॉन केमिस्ट्री वाले पर्सन हैं और हमको कोई चीज पता करनी है, हम कैसे करेंगे इस टाइप की कि कोई रिएक्शन हो रही नहीं हो रही है, वो कैसे पता करेंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट, हाउ वी विल फाइंड अगर आउट। सर मुझे जो चाहिए, जो हाँ मुझे चाहिए अगर वो मुझे दिख रहा है हाँ तो मैं हाँ, सोचूंगा कि हाँ आ गया, अच्छा अपना फाइनल रिजल्ट आ गया है। ठीक है, वो भी सही है। सपोज एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आप घर पे सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, दाल बना रहे हैं, जी। कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि मेरी दाल बन चुकी है? या तो आप मैं उसको उसको टेस्ट करता हूँ, नहीं तो हाँ, देख के करूंगा। बस वेरी गुड, टेस्ट करोगे। ठीक है, टेस्ट करोगे, देख सकते हो, या उसका उसकी मतलब उसकी जो खुशबू आएगी उससे पता चल जाएगा। ये 3 चीजें ही है ना, तो अपन सेम चीज यहाँ भी करते हैं। ठीक है, आपका पॉलीमर चेन है, सपोज ये आपका चेन है। ठीक है, तो एक तो ये है कि मैं इसका मोलिकुलर वेट मेजर करूं। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट मेजर करने से मुझे पता चलेगा कि कितनी लंबी चेन बन चुकी है। ठीक है, लेकिन अपना क्वेश्चन, अपना पर्पस सोल्व नहीं हो रहा, अपना पर्पस सोल्व हो रहा है कि हमारी रिएक्शन बंद हो चुकी है या नहीं। ठीक है, 100% श्योर, तो मैं कैसे पता करूंगा? सपोज मेरे, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, उससे आप बताइए। सपोज मेरे ये मेरे 2 पॉलीमर हैं, COH। ठीक है, तो ये मेरे 2 पॉलीमर हैं, 2 मोनोमर है, सॉरी, इनसे मेरी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ये पॉलीमर नहीं बनेगा। तो इसका एक फैसला दूरी और लगा दो, इसको मैं कर देता हूँ CH2।
ठीक है, इसको कर दिया मैंने CH2 और इधर भी मैं एक OH ग्रुप और लगा देता हूँ। सपोज इस टाइप का कोई कंपाउंड है, मोनोमर है, ठीक है, और ये 2 है, ठीक है। तो बताइए अब मुझे पता करना है कि मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कैसे पता करूंगा? सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट की यूज के, किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज से करना है मुझे, कुछ कर सकते हैं? टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा अगर इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास तो। हाँ, मतलब आपको मैं सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट देता हूँ ना, तो आप ये पता कर सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ये वाला, ये और ये वाला। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई मतलब कुछ तो कंपाउंड खत्म हो जाना चाहिए ना, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी ना। हाँ तो मैं अगर पता कर लूंगा कि चलो मेरा ये वाला कंपाउंड खत्म हो चुका है, ये मोनोमर खत्म हो चुका है, मतलब मेरी रिएक्शन हो चुकी। उसके बाद भले ये वाला बचा भी है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना, मतलब ये दोनों होंगे तभी रिएक्शन होगी, तो उसमें से एक खत्म हो चुका है मतलब मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मैं हाँ अगर पता लगा लूं कहीं से कि मेरा ये कंपाउंड पूरा खत्म हो चुका है, तो मैं उस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा कि मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब इसके लिए अलग अलग मेथड। तो जैसे कि हम क्या करते हैं इस टाइप, जैसे कि हम क्या मतलब जो भी पॉलीमर में काम करते हैं वो उसके लिए IR कराएंगे। IR पता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स आर देयर टू फाइंड आउट दैट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपाउंड इज प्रेजेंट और नॉट, ओके। उसमें कैसा पता चलेगा? आपका COH ग्रुप है ना, इसका COH, ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो रहा है बट आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। तो ये COH ग्रुप की पीक आएगी उसमें, IR ऐसा होता है, ये है IR, ठीक है। तो मतलब ये इस टाइप से वहां पे पीक आती है। तो सपोज ये COH की पीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये आपकी पीक है COH की, ठीक है। ये मैंने IR किया जब रिएक्शन स्टार्ट की थी, सॉल्यूशन थोड़ा सा लिया, उसका IR किया तो मुझे ये पीक मिली, मतलब मेरे मेरे कंपाउंड में COH है। मैंने 2 घंटे बाद वापस IR किया और मैंने पता किया तो मेरी इस टाइप से पीक आई। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें वो पीक आई नहीं रही है COH की, इसका मतलब मेरा नहीं आ कंपाउंड रहा। खत्म हो चुका है, हम्म। ठीक है। तो इसका मतलब मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कर सकते हो ना ऐसे। तो ये एक टेक्निक IR। वैसे ही बहुत सी टेक्निक्स है, NMR है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उससे आपका मतलब मॉलिक्यूलर चेन कितना बना वो भी पता चल जाएगा। बहुत सी चीजें हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये चीज समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, चलो अभी जी लेस देन सर। 1 मिनट रहा है, मैं आपको नई क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ना, फिर उसको